Hi guys. So in this video we will discuss about the High Courts under the Government of India Act 1935. In my previous 3 videos I have already covered the High Courts Act introduction and Indian High Court Act 1861 and High Courts under in 1911 and under the Government of India Act 1915. If you haven't watched the video, I have in the description box आप लोग उसका links देख सकते हैं, वहाँ पे वो available है. And if haven't seen those videos, so I will recommend कि इसे देखने से पहले आप लोग उनको देखें ताकि आपको ये topic, ये courts का act अच्छे से समझ में आ सके. So let's see what's there in this. The Government of India Act 1935 repealed all the previous acts. जब ये एक्ट पास हुआ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पास होने से इससे पहले जितने भी एक्ट्स स्टेब्लिश हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, चाहे वो 1861 का हो, चाहे 1911 का हो, चाहे 1915 का हो, वो सारे एक्ट्स ख़त्म कर दिए गए, सब कैंसिल कर दिए गए थे. अंडर दिस एक्ट एवरी हाई कोर्ट वॉज टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. एज हमने पहले के एक्ट्स में भी पढ़ा है कि हाई कोर्ट was used to considered as a court of record. So same is here that यहाँ पर भी high court as a court of record consider किया जाता था. Now if we talk about its composition, so there used to be one chief justice, एक chief justice होता था, and the junior judges. Their number is not defined actually. So there used to be some junior judges and which were appointed by His Majesty time to time. इनको appoint जो crown था वो करता था time to time. Okay. Now the judges were to hold the office until the age of 60 years. जो judges थे इनको अपना ऑफिस कब तक, मतलब इनका टाइम पीरियड क्या था, इनका टेन्योर क्या था कि जैसे ही अगर इन्होंने 60 साल का एज अपना पार कर लिया उसके बाद दे हैड टू रिजाइन, लाइक दे हैव टू लीव देयर पोजीशन. मतलब 60 ईयर्स तक दे हैव टू होल्ड देयर ऑफिस, दे हैव टू वर्क विद देयर डेजिग्नेशन. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्वाइट क्लियर. नाउ अब ये तो है कि 60 इयर्स की एज तक दे कैन वर्क एज अ जज, बट दे कुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस अर्लियर even on the ground of misbehavior or infirmity of mind or body or recommendation of the Privy Council. If Privy Council finds कि कोई भी जो जज है वो इन ऑफिस अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई भी मिसबिहेवियर कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, या ही इज़ नॉट फर्म विद हिज माइंड और बॉडी, सो उसको हम कभी भी रिमूव किया जा सकता था. ठीक है, तो ये काम जो था इन सबको देखने का वो प्रिवी काउंसिल के अंडर था. Governor General was empowered to appoint the additional judges for a period of 2 years to cope with the pending works in the high courts. If there used to be any pending work with the high courts that is apart from a usual working, so उसको हैंडल करने के लिए गवर्नर जनरल को ये एम्पावर किया जाता था कि वो एडिशनल जजेस अपॉइंट करे 2 साल के टेन्योर के साथ, कि जितना भी पेंडिंग वर्क है वो जजेस उसको कोप अप कर लें, उसको हैंडल कर सकें. The act abolished the previous system of appointing 1/3 judges from amongst the barristers and 1/3 judges from amongst the Indian civil services. If you will read the 1861 or 1915 act, so उसमें इसका वो दे रखा है qualification, what qualification should be there to be appointed as a judge. तो उसमें दिया था कि 1/3 जो है वो बैरिस्टर होने चाहिए from Great Britain और from somewhere, और जो बाकी जो 1/3 होने चाहिए जजेस वो इंडियन सिविल सर्विस होनी चाहिए. तो इस तरह के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे या इस तरह की जितनी भी क्वालिफिकेशंस थी इस एक्ट ने वो सब ख़त्म कर दिया था. The rule prescribing that a person appointed to hold the office of Chief Justice of a High Court should be a barrister from England, Ireland or an advocate from Scotland was even abrogated. यहीं तक सिर्फ यही नहीं कि यही चीज़ें जो थी इसको ख़त्म करा गया, इसके साथ साथ एक और रूल था पहले जो बनाया गया था कि चीफ जस्टिस वही पर्सन होगा हाई कोर्ट का जो या तो बैरिस्टर एज अ बैरिस्टर रह चुका हो इंग्लैंड आयरलैंड के अंदर, या फिर वो एज अ एडवोकेट वर्क कर चुका हो स्कॉटलैंड के अंदर. तो इस तरह का जो भी प्रोविज़न था वो भी अब ख़त्म कर दिया गया. And now even an Indian who had served as a judge of high court for not less than 3 years experience was eligible to be a judge. जो एज अ जज रह चुका हो जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो एक इंडियन भी बन सकता था. ठीक है, and he could hold the office of judge of high court. An Indian member of bar could be appointed as
A Chief Justice of High Court provided the fulfilled requisite qualifications. एक अभी हमने बात किया कि अब इंडियंस भी बन सकते थे, ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली द इंग्लिश सर्वेंट्स वुड बी अलाउड टू बी द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स. इसके साथ साथ जो बार काउंसिल के भी जो इंडियन मेंबर्स थे वो भी हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस की तरह अपॉइंट किए जा सकते थे, और अगर उन्होंने सारी जितनी भी रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस नीडेड हैं वो सब फुलफिल कर रखे हों. देन द सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू बी फाइंड बाय हिज मेजेस्टी and could not be changed to the disadvantage of any of such judge. इन जज हाई कोर्ट के जजेस का जितना भी सैलरीज होता था या पेंशन होता था वो सब उनका मेजेस्टी ही, जो क्राउन थे, वो डिसाइड करते थे, एंड इसको चेंज नहीं किया जा सकता था, ठीक है. द ओनली ऑर्डर फॉर डिसाइडिंग द सैलरीज एंड पेंशंस यूज्ड टू बी इन द हैंड्स ऑफ द मेजेस्टी ओनली. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स jurisdiction, the area of control. So the jurisdiction was same as of 1915. जैसे हम 1915 में पढ़ा था, इसका jurisdiction वैसा ही है. And High Courts was not having any jurisdiction in the matters of relating to revenue. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका एडमिरल्टी, क्रिमिनल, सिविल, इंटरस्टेट, टेस्टामेंट्री और इन सब केसेस में ये अपना डिसीजन, अपना jurisdiction प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन रेवेन्यू केसेस से इसको कोई रिलेशन नहीं है. इट हैड नो पावर टू गिव jurisdiction in the powers relating to the revenue. All the laws in force in India were to continue until they got repealed by any competitive legislative authority. जितने भी लॉज इंडिया में प्रिवेल कर रहे थे वो एज इट इज़ वर्कआउट करेंगे, और तभी वो हटेंगे या वो कैंसिल होंगे जब कोई हैवी कॉम्पिटिटिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उसको वर्कआउट करेगी, या जब उसका ऑर्डर आएगा तभी वो सब ख़त्म किए जाएंगे. तो ये इसका जुरिस्डिक्शन हो गया, मीन्स द एरिया ऑफ कंट्रोल. नाउ व्हाट powers were there with the High Court under this act? So High Court was empowered to transfer any case to itself from any of its subordinate courts on the application by the parties. हाई कोर्ट के पास ये पावर था कि अगर कोई भी केस अपना उसे लगता है कि उसको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को ट्रांसफ़र करना चाहिए तो वो कर सकता था. इट वॉज empowered टू ट्रांसफ़र एनी केस फ्रॉम एनी ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है. और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज, अगर पार्टीज अपना एप्लीकेट करती हैं तो, ठीक है. नाउ अपील्स का क्या है इसका? अपील्स फ्रॉम द जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट could be filed in the federal court only if the high court certify that following case involved substantial question of interpretation of act or any order of council. हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट, डिक्री या कोई भी फाइनल ऑर्डर फेडरल कोर्ट के में हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, फेडरल कोर्ट में जा सकती थी कोई भी इसकी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर की अपील. लेकिन तब इसमें भी कंडीशन है, तब जा सकती थी जब हाई कोर्ट ये वेरीफाई कर दे, ये सर्टिफाई कर दे कि जो केस की अपील इसके फेडरल कोर्ट में ट्रांसफ़र की जा रही है दैट इज़ रिलेटेड टू सम, उसके अंदर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है कि मतलब इधर दैट्स ऑफ अ पब्लिक इशू, या फिर उसमें कुछ वायलेशन हो रहा है, क्या नाम है, किसी राइट्स का किसी के, या फिर कोई वी कैन से दैट some lawful obligations are infringing there. So in that case उसको ये सर्टिफाई हाई कोर्ट को करना पड़ेगा कि हमने इस वजह से ये केस फेडरल कोर्ट में ले डाउन किया था. An appeal could be taken to the federal court even without such certificate. अब यहाँ बात देखिए कि एक कंडीशन में फेडरल कोर्ट के पास अपील्स विदाउट सर्टिफिकेट की भी जा सकती है if the subject matter of the dispute in a civil case is not less than 50,000. अगर तब जा सकती है जब अगर जो कोई सिविल केस का जो अपील जाता है उसका जो वैल्यू है, जो लिमिट है वैल्यू, वो 50,000 एक्सीड कर रहा हो, तब जा सकता है, ठीक है. तो इसमें अंदर कंडीशन है. सो आई होप द अपील्स पोर्शन इज ऑल्सो क्लियर. सो विद दिस आई होप वी आर डन विद द हाई कोर्ट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. एंड आई बिलीव द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू. हमने इसमें पढ़ा कि सारे पुराने एक्ट्स को ख़त्म कर दिया गया, फिर इसका कंपोजिशन पढ़ा, जुरिस्डिक्शन पढ़ा, और जो अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसको हटा सकते हैं उनके जॉब से, ठीक है. प्रीवी काउंसिल के हाथ में था ये, कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में मिसकंडक्ट क्रिएट करता है. एंड इसके अंदर हमने पढ़ा कि अब इंडियंस को भी राइट्स है कि वो भी एज अ जज अपॉइंट किए जा सकते हैं. एंड फिर हमने इसका पावर्स पढ़ा, अपील्स पढ़ा. So this was all under the High Courts under Government of India Act.
So thank you so much for watching. If there is any doubt, so you can write down in the comment section, and I'll try my best to reply for that. So till then, be happy, be safe. Thank you so much. Bye bye.